Good morning. Yesterday we have discussed some of the questions for area under the curve. Now it should be continued. The question number 9. Find the area enclosed by the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Both are the parabola. One is along x-axis and this one is along y-axis. Certainly they will intersect somewhere. Then whatever the area in between that, we want to find to that one. In place of this, I want to take the question y square is equal to 4ax, means a is a 1 and x square is equal to 4ay. This will be the better. You have to remember also the area in between these is 16a square by 3. Means a is 1, so its area is 16 by 3. Just 16 or 8, just we will see. I am not confirmed. I hope that 8. Y square is equal to 4ax. Is a parabola whose vertex is at origin and focus is a0. It will be along x-axis like that. This is the parabola y square is equal to 4ax. X square is equal to 4ay. Is a parabola whose vertex is at origin, focus is on y-axis 0a and it is along y-axis like this. This is the parabola x square is equal to 4ay. Okay. Both has vertex at 0, 0. Means one point of intersection is there. Another point is P, let us suppose. Find the point of intersection. Means solve these two. How it can be solved? X is a y square by 4a from equation 1. We can put here. Or y is equal to x square by 4a, put here. Putting value of y from 1, from 2, that is y is equal to x square upon 4a in equation 1. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें y की वैल्यू. क्या जाएगा? x to the power 4 upon 16a square. x square by 4a का होल स्क्वायर is equal to 4ax. और x to the power 4 is equal to 64a cube x. So either x is 0 or x is equal to 4a. X is equal to 0. If x is not 0, then it has been cancelled. If x is 0, then they will intersect at 0, 0. वो दिख रहा है आपको. X cube is equal to 64a cube. That is x cube is equal to 4a whole cube. So x is equal to 4a. X is 4a, then find point of intersection y from equation number 1. Y is equal to 16a square upon 4a, that is 4a. So both the curve intersect at 0, 0 and
4a. 0, 0 and 4a. For this, a is 1, so 0, 0 and 4. They will intersect at 0, 0 and 4. Okay? Now find the area. Which one area I want to find? This area. Enclosed between the curve. Now you think about स्ट्रिपिंग. चलिए हम पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप ले रहे हैं. दिस इज दी स्ट्रिप, दिस पोर्शन. दिस स्ट्रिप विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मीन्स x is equal to 0 to x is equal to 4a. x is equal to 0 to x is equal to 4a. Okay? upper part of this strip is lies on parabola y square is equal to 4ax. So required area is 0 to 4a. 0, x is equal to 0 to x is equal to 4a. Y of parabola 1, parabola first, minus y of parabola 2. y1 minus 2, this top of the strip lies on which of the parabola? Y square is equal to 4ax, and bottom lies on x square is equal to 4y. तो पैराबोला 2 is x square equal to 4ay and parabola 1 y square equal to 4ax. तो top of the strip on this one and bottom on this one. So y of parabola 1 minus y of parabola 2, 0 to 4a. Y of parabola 1, that is 2a power half x to the power half, minus y of parabola 2, that is x square upon 4a. Now we integrate 2a power half x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 minus x square का x cube by 3, x cube by 3 into 4a. Limit is 0 to 4a. First we put 4a, means 2a power half into 2 by 3. This 3 by 2 becomes 2 by 3. 4a to the power 3 by 2, x is a 4a, minus 4a power cube upon 3 into 4a. अपर लिमिट हो गई and lower limit is 0. Then this is also 0, this is also 0. 4 by 3, 2 into 2 by 3, 4 by 3, a to the power half into 8. 4 power 3 by 2, that is 2 square power 3 by 2, 2 power 3, 8, a power 3 by 2, minus 64 a cube upon 3 into 4a. 8 for the 32 by 3 a square, a power half, a power 3 by 2, that is a square, minus 4, 16, 1a cancel, 16a square by 3. 3 LCM आ जाएगा, 32a square means 16a square by 3 square unit. You have to remember it. How you will do, ये हमने शो किया, but it is very important if you remember it,
then for objective questions directly you can write the answer. A is a 1, so answer is 16 by 3 into 1 square. Y square is equal to 8x and x square is equal to 8y, means 4a is 8, a is 2, then 16 by 3, a square means 2 square, that is 64 by 3. Y square is equal to x and x square is equal to y. A is a 1 by 4, 4a is a 1, y square is equal to 4ax, so 4a is a 1. Here also x square is equal to 4ay, means a is a 1, so answer is 1 by 4, so 1 by 3, answer becomes 1 by 3. A is a 1 by 4, that is 4a is a 1. So 16a square means 4a whole square divided by 3. Means I can say, in short, multiply the coefficient of x in first one, coefficient of y in second one, multiply करके divide by 3 कर दीजिए. 4a into 4a by 3, 1 into 1 by 3. एक ही वैल्यू ही नहीं चाहिए, दोनों में स्क्वायर वाले टर्म के अलावा जो x का कोफिशिएंट है, दूसरे में y का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाई 3. एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आया है. प्रूव दैट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay डिवाइड into 3 equal part to the square from vertex and point of intersection is taken as diagonal. Prove that area enclosed between these two curve y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, divide the square into 3 equal part whose diagonal is point of intersection of these two curve. Means ये देखिए डायगोनल, इससे हमें जो स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर का 1/3 है ये स्क्वायर. चेक करिए, whose diagonal is point of intersection of these two curve. तो point of intersection is 4a, means this length is 4a, this is 4a, this is also 4a, तो this is the square. इस स्क्वायर का 1/3, स्क्वायर की एरिया कितनी है? 16a स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, दैट इज 16a स्क्वायर. तो ये हो जाता है 16a स्क्वायर बाई 3. आई हैव कैलकुलेटेड. ये भी होगा 16a स्क्वायर बाई 3 और ये भी बचेगा 16a स्क्वायर बाई 3. तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ओके, if it is y square equal to 4ax, x square equal to 4by, then area is 16ab upon 3. Y square is equal to 4ax, x square is equal to 4by, then the area is enclosed between these two parabola is 16ab upon 3. Okay? So two parabola. Yesterday I have not discussed about the two parabola. We take the parabola and line. Now we have taken two parabola only. Now देखिए, one parabola and one circle. Using integration, find the area of the region enclosed by the circle x square plus y square is equal to 16 and y square is equal to 6x.
means one is circle, other is parabola. Using integration, find the area of the region enclosed by the circle. X square plus y square is equal to 16 and y square is equal to 6x. Okay, just you see this one. Question number 10. This was question number 10 in our question. X square plus y square is equal to 16. Is a circle with radius 4. With radius 4, it is a form of x square plus y square equal to a square. Radius 4, center at origin. Center at origin, radius is 4. So, circle we have drawn. Okay? This is the circle with center O, radius is 4. Y square equal to 6x. It is a parabola whose vertex is at origin, focus is on x-axis, that is 3/20. Focus is at 3/20. Now we want to find the area enclosed by the parabola and circle. This is the circle, this is the parabola. Circle I have drawn earlier. Y square is equal to 6x. This is a x square plus y square is equal to 16. This is the circle. Which area I want to find? This much. Enclosed by this. Okay? Have you seen this area? This is enclosed by circle as well as in parabola. Both curve, this was point which we will check that the student has written or not. Both the curve are symmetrical about x-axis. So, area in first quadrant is same as area of fourth quadrant. Curve is symmetrical about x-axis. This is x-axis, means जैसी फिगर x-axis के ऊपर है वैसी ही फिगर x-axis के नीचे है. ये कैसे मैथमेटिकली पता करेंगे? If only even power of y will occurs, then curve is symmetrical about x-axis. If only even power of x occurs in the curve, then symmetrical about y-axis. Both are even powers only, then symmetrical about x and y-axis both. Just we see, the equation 1 is symmetrical about both the axes. Means x-axis as well as y-axis दोनों के about symmetrical है. But this one, even power of y occurs, but there is a odd power of x also. Hence, this curve is symmetrical about x-axis only. Since only even power of y will there and odd power of x will be there, hence it is symmetrical about x-axis. Means I can say both the curves are symmetrical about x-axis. This is the symmetrical about x and y-axis both. This is symmetrical about x-axis only. So, what are the common thing? Common thing is both the curve are symmetrical about x-axis. If the curve is symmetrical about x-axis, then area of first quadrant is same as fourth quadrant. Area of second quadrant is same as area of fourth quadrant. So,
Here, whatever the area we want to find, we will not to find the area of second quadrant. So this one will be the first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया फोर्थ क्वाड्रेंट के इक्वल है. सो टोटल एरिया इज 2 into एरिया लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगी. ठीक, अब देखिए, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये पॉइंट तो फिक्स है बिल्कुल. विच वन? दिस वन. दिस वन इज द 4 0. दिस इज द पॉइंट 4 0 बिकॉज सर्किल है सेंटर 0 0, रेडियस इज 4. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? दैट इज द कॉमन पॉइंट on parabola and circle, means we will solve both the equation. So putting the equation 1 from equation 2 और subtract together कर दीजिए. 1 minus 2, 1 minus 2 जल्दी आ जाएगा. y स्क्वायर कैंसिल हो गया. x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर कैंसिल 16 minus 6x और x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स आर x प्लस 8 एंड x माइनस 2. x प्लस 8 एंड x माइनस 2 0. सो x इज ए माइनस 8 एंड 2. बट x इक्वल टू माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल. Minus 8 is not possible. X cannot negative. From equation 2, it is clear that y square become negative. If x is a negative, then from equation 2, y square is negative, y is imaginary, so it is not possible. So x equal to minus 8 not possible. But x is equal to minus 8 not possible. Why not possible? I have discussed. Why? If x is minus 8, then y square is equal to negative, so y is imaginary, no imaginary point should be there. Hence, x is equal to 2. So, for x is equal to 2, what is y? Y square is equal to 12, y is equal to plus minus 2 root 3. Means both are intersect at 2 comma 2 root 3 and 2 comma minus 2 root 3. Both the curve intersect at 2 comma 2 root 3 and 2 comma minus 2 root 3. Let it A, this is B, this is C. We want to find the area in first quadrant, this portion, and twice to that one. Make the step. Parallel to y-axis. Make the strip parallel to y-axis. It is shown. It start from origin because I want to find the area from here. End at 4. If strip is moving from 0 to 4, just you see till here, 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 and at x is equal to 2 तक पैराबोला पर है. टॉप है पैराबोला पर, बॉटम है x एक्सिस पर. टॉप है पैराबोला पर, बॉटम है x एक्सिस पर. लेकिन जैसे ही 2 के आगे पहुंचेगी, ये स्टेप जैसे ही 2 के आगे जाएगी, तब आप देखिए इस स्टेप की सिचुएशन क्या हो जा रही है. टॉप हो जा रहा है सर्किल पर और बॉटम आ रहा है x एक्सिस पर. माने दो तरह का है. तो 0 से 2 तक y ऑफ पैराबोला प्लस 2 to 4 y ऑफ सर्किल.
एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू रहेगा ही 0 to 2 y of parabola that is root 6 into x power half dx. Okay, y of parabola. Why? This step start from 0 to 2 whose top is at parabola. But after 2, total area हमारी 0 to 4 तक थी. But after 2, just it slips, leave the parabola and slip on circle. तो plus 2 to 4 y of circle that is under root 16 minus x square dx. Okay, now we will calculate it. 2 into root 6 x to the power 3 by 2 upon 3 by 2, limit is 0 to 2, plus here we should apply the formula root a square minus x square. A is a 4 because 16 can be written 4 square. 16 minus x square, that is 4 square minus x square. Apply the formula x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. Limit is 2 to 4. Integral of a square minus x square dx, x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. This formula we have applied here. A is a 4. So x by 2, a square that is 16 minus x square plus a square by 2, 16 by 2 sin inverse x by a. Put upper limit that is 2. This is 3 by 2, 2 by 3 हो जाएगा. 2 by 3 into root 6 x power 3 by 2, 2 to the power 3 by 2 minus 0. I am not writing minus 0. चलो लिख दे रहा हूं माइनस 0 प्लस पुट 4 देन 0 4 by 2 2 into root 16 minus 16 that is 0. 16 by 2 is 8 sin inverse 1 4 by 4 माइनस 2 पुट करेंगे तब देखिए क्या आ रहा है 2 by 2 that is 1. 16 minus 4 root 12 plus 8 sin inverse half 2 by 4. 2 into 2 by 3 into root 6 into 2 root 2. 2 power 3 by 2. 2 power 3 by 2. That is 2 into 2 power half. 2 to the power 1 plus half that is 3 by 2. तो 2 power 1 2 आ गया. 2 power half को root 2 लिखा minus 0 लीव कर दिया. ये 0 हट गया. प्लस 8 into sin inverse 1 that is pi by 2 minus root 12 that is 2 root 3. Root 12 means 2 root 3 plus minus 8 into pi by 6 sin inverse half that is pi by 6. Okay, 2 into 2 to the 4 by 3 root 6 into root 2 root 12 that is 2 root 3 plus 4 pi
-2√3 minus 2 4 the 2 3 the, that is 4 pi by 3. (16 by 3√3) 4 to the 8, 8 by 3, 8 by 3√3, again it is -2√3, एक जगह कर दिया 4 pi minus 4 pi by 3, that is 12 pi minus 4 pi by 3, that is 8 pi by 3, 8 pi by 3. समझ में आएगी बात? 4 पाई माइनस 4 पाई बाई 3, 4 पाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3. यहां देखिए एलसीएम दोनों का 3, एलसीएम इज 3, 8√3 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 पाई बाई 3, दैट इज 2√3. 2 into LCM is 3, 2√3 plus 8 pi square unit. This is the answer. 2 by 3, 2√3, 2 by 3, 3 को बाहर कर दिया, 2√3 plus 8 pi. 2 और कॉमन ले सकते थे तो एरिया बिकम 4 by 3, 4 by 3 √3 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट. 4 by 3 √3 प्लस 4 पाई स्क्वायर यूनिट. देख रहे हैं कि इसकी ये इस तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया करते हैं, तो इन्हें आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करें. 4 by 3 √3 प्लस 4 पाई इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन. क्लियर हो गई बात? तो यहां देखिए 2 स्टेप प्लस हो रही थी, मैंने यहां से यहां तक पैराबोला पर था, इधर सर्किल पर हो गया. तो पहले पैराबोला वाला एरिया प्लस सर्किल वाला एरिया ट्वाइस क्यों किया, वो आपको हमने रीजन दिया कि दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, सो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सेम एज एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड किया, फोर्थ क्वाड्रेंट की एरिया डायरेक्ट आ गई. तो ये सर्किल और पैराबोला कोई भी क्वेश्चन हो सकता है भाई, ऐसा कोई जरूरी है कि 16 ही हो, तो हम उसको करें. वन मोर क्वेश्चन. 2 सर्किल्स, एरिया इनक्लोज बिटवीन दी 2 सर्किल्स. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी. ये देखिए, ये भी सर्किल विद सेंटर ओरिजिन, रेडियस इज 1. सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस इज 1. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो सर्किल विद सेंटर 1 0, सेंटर 1 0 एंड रेडियस इज 1. x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो h इज 1, k इज 0, सो सेंटर इज 1 0 एंड रेडियस इज 1. सेंटर इज 1 0, ये पॉइंट 1 0 है, ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज द पॉइंट 1 0, y 1 0, सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस इज 1, तो पक्का है यहां तक हो गया 1 0. दूसरे वाले का सेंटर इसका मतलब यहीं पर होगा, फिर रेडियस भी 1 ही है, तो 1 तक लेंगे तो ओरिजिन से पास करेगा. ये बात ध्यान देनी है आपको कि बिल्कुल ये सेंटर से ही पास होके जाएगा.
ये हो गया। इसको C ले लिया मैंने, तो C इज ए 10, इसे D ले लिया तो D होगा 20, 10 पर सेंटर, 1 रेडियस आगे चली गई तो 20। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया मैंने A B, ये निकालना पड़ेगा। बोथ द कर्व आर सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, both the curve are symmetrical about x axis. Y, even power of y will occur here only, also even power of y occurs here only. Confusion में I found that so many student has written कि both the curve are symmetrical about x and y axis. No. Whenever it should be expanded, then x square minus 2x plus 1, यक्स का आड पावर भी इसमें आ गया, इसलिए दिस इज नॉट ए सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ओनली, हेंस आई कैन से बोथ द कर्व्स आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. सो एरिया लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सेम एज एरिया लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो टोटल एरिया इज ट्वाइस area lies in first quadrant. Total area is twice area lies in first quadrant. केवल 2 into लिखने से काम नहीं बनेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो पहले लिखा था इस बार नहीं लिख रहा हूं मैं. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सेंटेंस? कि बोथ द कर्व आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सो area lies on first quadrant is same as area lies on fourth quadrant. So total area, required area is 2 into area lies in first quadrant. Means I will find this much area and twice of that. Okay? तो दिस मच एरिया मीन्स स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, यहां से शुरू हो रही है, कहां तक? x इज इक्वल टू 1 तक. कहां तक? x इज इक्वल टू 1 तक, 0 से 1 तक. स्ट्रिपिंग की बात देखूं, स्ट्रिप जो है ये स्ट्रिप बनाया, ये देखिए स्ट्रिप, स्लाइस काटा मैंने, ये स्लाइस या ये स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, लेकिन 2 तक जाने में तो टॉप इसका बदल जा रहा है, बॉटम नहीं बदल रहा है. बॉटम तो ऑलवेज x एक्सिस पर है, लेकिन टॉप देखिए, इसको स्लिप कराइए जरा फॉरवर्ड टू द सी, क्या होगा? यहां से A तक तो सर्किल नंबर 2 पर है. सर्किल नंबर 2 ये है जिसको इक्वेशन हमने लिखा है, ये सर्किल नंबर 1 पर है. 0 से लेकर A तक तो सर्किल नंबर 2 पर है, लेकिन उसके बाद कहां चला गया ये सर्किल नंबर? ये देखिएगा, ये चेंज हो जाएगा. ये स्टेप क्या हो रही है? A के आगे x इज इक्वल टू 1 तक माने C तक के लिए सर्किल नंबर 1 पर पड़ रहा है. तो ये सब बातें बहुत ध्यान देना है. माने 0 से A तक सर्किल 2 का y प्लस A से 1 तक सर्किल नंबर 1 का. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ये का. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, दैट इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x
minus 1 is equal to 0. That is x is half. x is half तो y आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 1/4. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4. वाई स्क्वायर x स्क्वायर की जगह हाफ रखा तो x हाफ हो गया स्क्वायर 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4. वाई स्क्वायर इज ए 3/4. देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. They will intersect half √3/2 and b क्या है हाफ माइनस √3/2. तो 0 से हाफ तक सर्किल 2 प्लस हाफ से 1 तक सर्किल 1. तो टोटल एरिया इज 2 into 0 to half सर्किल 2 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस हाफ टू 1 सर्किल 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx. ओके तो सेकेंड वाला तो डायरेक्ट हो गया. यहां के बाद फिर मैंने गलती देखा स्टूडेंट्स की क्यों कह देता है कि नहीं दिस एरिया इज सेम एज दिस एरिया तो 4 टाइम इज दिस एरिया. व्हाई दिस इज द सेम एज दिस वन. वहीं पर वही एग्जामिनर क्या करता है काट देता है आपको. कभी तो एक्सप्लेन करिए आप तभी तो बात बनेगी भाई. क्यों ये एरिया 0 से हाफ वाली हाफ से 1 के बीच में सेम हो जाएगी. ये एरिया इस एरिया के इक्वल क्यों है या तो एक्सप्लेन करिए या तो इसको मैथमेटिकली दिखाइए. तो हम इसको मैथमेटिकली दिखा रहे हैं. देखें इस पोर्शन को लेट x माइनस 1 इज ए माइनस टी नॉट टी. यदि लिमिट नहीं होती तो हम टी ले लेते. लिमिट नहीं होती तो हम टी ले लेते लेकिन ये लिमिट है माने x की वैल्यू 0 हाफ के बीच में है. x की वैल्यू 0 हाफ के बीच में है इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव आ रही है. x माइनस 1 की निगेटिव तो चूंकि स्क्वायर के हिसाब से तो सेम हो जाएगा. तो t तो निगेटिव बनेगा तभी तो पॉजिटिव करूंगा मैं. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टी सो दैट t बिकम पॉजिटिव. सो दैट t बिकम पॉजिटिव. फॉर x इज 0 we get t is half. x is 0 नहीं t is 1 and for x is half we get t is half. For x is 0 minus 1 is equal to minus t is equal to 1. For x is equal to half half minus 1 that is minus half is equal to minus t, so t is equal to half. And dx is equal to minus dt in first integrand. In first integrand दोनों में नहीं भाई, ये सब्स्टिट्यूशन केवल एक में किया हमने. Then the area is 2 into x is 0, t is 1. x is half, t is half. Under root 1 minus t square dx is minus dt plus half to 1 under root 1 minus x square dx. Using a to b fx dx is minus of b to a fx dx. A to b fx dx is minus of b to a fx dx. 2 into माइनस ऑफ b to a था तो उसको a to b कर दें. माने हाफ टू 1 के बजाय ये हाफ टू 1 हो गया. लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गई, साइन बदल गया.
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस हाफ टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर यूजिंग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ टी डी टी। तो एफ टी डी टी को एक्स डी एक्स लिख दें या एक्स डी एक्स को एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी लिख दें। तो हम टी वाले को एक्स लिख रहे हैं तो ए बिकम 2 इंटू हाफ टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बिकम, दोनों सेम अब आ गए। अब बनाइए 4 टाइम हाफ टू 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इन प्लेस ऑफ ऑल दीज यू हैव टू राइट हियर ओनली। यहीं से आप लिख देते हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो 4 टाइम दैट वन। ये पूरा का पूरा खा गए जो हमारे वैल्यूएशन का हमारे पार्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि हमें यही देखना था कि रियली आप शो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना नहीं देखना है, हमको स्टेप मार्किंग करनी है। ड्यू टू दैट इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट टू दीज 3। अब तो बहुत आसान, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला मैंने पिछले वाले में लिखा था। आई विल नॉट गोइंग टू राइट, ओनली इंटीग्रेट 4 टाइम एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए दैट इज एक्स ओनली बिकॉज ए इज ए 1, लिमिट इज हाफ टू 1, हाफ टू 1। हाफ को बाहर कर लिया मैंने तो 4 इंटू हाफ कर दिया। अब पहले 1 रखेंगे, हाफ बाहर आ गया है, 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 0। ये बाहर हो गया है हाफ, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज ए हाफ, ये 2 बाहर आ गया तो एक्स की जगह हाफ, साइन इनवर्स नहीं, ये अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 बाई 4 सॉरी 3 बाई 4 प्लस साइन इनवर्स हाफ। सबकी वैल्यू नोन है, दिस इज 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 4, दिस 2 रूट 4 इज ए 2 तो 2 to the 4 रूट 3 बाई 4 माइनस साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3, 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। या तो 2 को अंदर कर देंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट, जैसा चाहे लिख सकते थे। ओके, 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। एक आध बार ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सेम है। एरिया आप 2 इंटू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हाफ की जगह एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगी। तो यहां पर लिमिट्स बदलते जाएंगे।
और चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को। हो सकता है 4 के बजाय 9 आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैं जनरल ले लूं यदि, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू 1 थी या 2 थी, बुक्स में 1 और 2 पर ही ज़्यादा मिला है क्वेश्चन, लेकिन हम चाहें तो a पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 एंड x माइनस ए होल स्क्वायर, ये ध्यान देना है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज 2। फिगर तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं। ये सर्किल था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये सर्किल था x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट a कामा 0, ये पॉइंट 2a कामा 0, ये तो 0 0 है ही। ये पॉइंट आप देखिएगा a/2 a√3/2 एंड b पॉइंट आएगा a/2 माइनस a√3/2। ओके, ये एरिया फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू a/2। ओपन कर देंगे। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर कैंसिल, 2ax को उधर कर दीजिए, तो 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a कैन नॉट बी 0, so 2x is equal to a, x is a/2. Hence y is equal to plus minus a√3/2. Both the intersect at a/2 comma a√3/2, a/2 minus a√3/2. अब एरिया ट्वाइस होगी बिकॉज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। So area on first quadrant is same as area on fourth quadrant. 2 into 0 to a/2, 0 to a/2। सर्किल नंबर कौन सा? 2, तो y ऑफ 2, क्योंकि स्ट्रिप का टॉप आप देख रहे हैं, स्ट्रिप का टॉप कहां पर जा रहा है? सर्किल नंबर 2 पर, इस पर, तो इसका y √ ए स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर dx प्लस a/2 टू a शिफ्ट हो गया सर्किल नंबर 1 पर, √ ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। फिर वही यह इसके इक्वल है, यह शो करना है। Let x minus a equals minus t, dx equal minus dt. For x is 0, we get t is a. For x is a/2, we get t is equal to a/2. x is 0 माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, टी इज ए। एक्स इज इक्वल टू a/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस टी, सो टी इज इक्वल टू a/2। देन एरिया इज 2 into x is 0, t is a, x is a/2, t is equal to a/2, √
ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी प्लस ए बाई टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ही मैं लिख दे रहा हूं। अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज किया तो साइन बदल गया, ए बाई टू ए हो गया। टी को यक्स कर दिया तो 2 टाइम ए बाई टू ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हुआ इसलिए साइन चेंज हो गया। ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आएगा, उसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए बाई टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आ गया 4 टाइम ए बाई टू ए, नाउ इट शुड बी इंटीग्रेटेड। डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट ए बाई टू टू ए। 4 इंटू हाफ, ये हाफ बाहर आ गए, अपर लिमिट रख दिया ए इंटू 0 ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज 1 माइनस ए बाई टू रखा तो यक्स इज ए बाई टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपान ए बाई टू, ए अपान ए बाई टू, सो इट बिकम्स हाफ ओनली। यही आएगा ना, ए बाई टू अपान ए दैट इज ए अपान टू ए 1/2 2 इंटू ये तो 0 बन गया ए स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू ए रूट 3/2। ये देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 3a स्क्वायर बाई 4 3a स्क्वायर बाई 4 रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आया रूट 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 6। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाहर आया 2a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 6, एक जगह कर दिया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 दैट इज ए पाई बाई 3। एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 6, तो उसको हम पाई बाई 3 लिख दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस रूट 3/4। 2 को अंदर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट। अब ए की वैल्यू 2 हो, ए की वैल्यू 1 हो, ए की वैल्यू 4 हो, हाफ हो, चाहे जो रहे। ए की वैल्यू 1 थी, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर आया था 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2। ए की वैल्यू ये 2 रहेगी तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2। ओके, ए की वैल्यू 3 रहेगी तो 9 इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3/2 आ जाएगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वी शुड रिमेंबर एज वेल एज हाउ टू सॉल्व, ये दोनों बातें आपको बहुत जरूरी हैं।
ये किए बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 लेस देन वाई लेस देन एक्स प्लस 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 2। अब ये देखिए भाई, 3 रीजन है इसमें, है ना। एक तो y लाइज बिटवीन 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा y लाइज बिटवीन 0 टू एक्स प्लस 1, तीसरा है x लाइज बिटवीन 0 टू 2। तो पहले इक्वलिटी पर तीनों को सॉल्व करें। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस। माने हमको x एक्सिस और y एक्सिस की पहली बात करनी है। अब इसको देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट इज ए पैराबोला, हैज वर्टेक्स 0 1, हैज वर्टेक्स 0 1 and along y axis, along y axis माने अपवर्ड ऐसे आएगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्म है। बहुत डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्टेक्स जरूरी था। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज ए लाइन पास फ्रॉम 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ठीक है ना। 0 1 से ये लाइन पास करेगी एंड एक पॉइंट और चाहिए, या एट 45 डिग्री लिख दीजिए, एट इंक्लाइंड 45 डिग्री पाई बाई 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो भी लाइन बन जाएगी। x is equal to 2 is a line parallel to y axis at a distance of 2. Parallel to y axis at distance 2. अब देखें कौन सी एरिया चाहिए। ये तो x इज इक्वल टू 0 है ही, x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए ये बना दिया, x इज इक्वल टू 2, ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये y इज इक्वल टू 0 है ही, माने x एक्सिस, y एक्सिस और ये x इक्वल टू 2, इसके बीच वाली एरिया चाहिए हमको। पहले पैराबोला बनाए, पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका फोकस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स a 0 1 है, y एक्सिस के अलांग बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दिख रहा है। ओनली इवन पावर ऑफ x अकर्स, सो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस मीन्स ये पैराबोला हमारा इस तरह का बनेगा। ये पॉइंट B, यहां पर x तो 2 है ही, x इक्वल टू 2 को कट कर रहा है, x को 2 रखते ही y 5 हो जा रहा है, तो 2, 5 पॉइंट आ गया। अब जरा हमारी लाइन देखी जाए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देखिए सब बन गए ना, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस बना हुआ है इन दोनों के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने बना दिया है, ठीक है।
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बनाना है। माने ये तो 0 1 से पास हो रही है लाइन, भाई सीधा दिखा है कि दिस इज ए लाइन पास फ्रॉम 0 1, माने इसके वर्टेक्स से पास करेगी, यहां से पास करेगी। इस लाइन को देखो कहां कट करेगा, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, माने इसके नीचे ही आएगा। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 3, माने इसके कहां आएगा, नीचे आएगा। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये 5 था तो 3 थोड़ा सा नीचे, ये ले लिया हमने 2, 3, थोड़ा और ऊपर लो भाई, ये बनेगी लाइन, ये लाइन बन गई, ठीक। ये देखिए, अब जरा देखें हमें कौन सी एरिया चाहिए। एक तो पैराबोला के अंदर है और लाइन के नीचे है, तो ये वाली एरिया चाहिए, ये छोटी वाली एरिया दिख रही ना, ये वाली एरिया चाहिए। ओके, तो ये पूरी की पूरी एरिया हमें चाहिए। लेकिन दोनों कहां कट करेंगे ये पहले मैं देखूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया, y माइनस वाई 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, that is x is equal to 0 and x is equal to 1। तो x इक्वल टू 0 पर y 1 है ही, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 है, माने ये 1 2। अब एरिया कौन सी चाहिए, ये वाली एरिया मुझको नहीं चाहिए भाई। ये देखिएगा पैराबोला, ये एरिया है जो निकालनी है। यहां 0 1 लिख दे रहा हूं ताकि साफ दिखे, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए शेडेड पोर्शन, ये एरिया मेरे को चाहिए। इसमें यहीं पर दिक्कत हो गई कि एरिया कौन सी चाहिए। पैराबोला के आउटसाइड वाली एरिया चाहिए, पैराबोला के आउटसाइड की एरिया चाहिए। हम कैसे पता करते हैं ये देख लेते हैं। ओरिजिन ले लिया, ऐसा कोई पॉइंट जो इसमें कहीं ना हो, तो 0 0 सबसे आसान दिख रहा है। यदि यहां 0 0 रख रहा हूं तो आप देखिए y इज ए 0, x इज ए 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, ट्रू आया। 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 ट्रू आया। इसका मतलब वह पोर्शन चाहिए पैराबोला वाले में जो 0 0 में पड़ रहा हो। या तो 0 0 अंदर रहेगा पैराबोला के, या तो पैराबोला के बाहर रहेगा। तो 0 0 कहां आ रहा है, पैराबोला के बाहर आ रहा है। इसका मतलब मुझे एरिया वह चाहिए जो पैराबोला के बाहर वाली हो। ऐसे ही लाइन में भी चेक किया, 0 लेस देन 1, इसका मतलब लाइन भी किसी भी रीजन को दो पार्ट में बांट रही है। ये लाइन देखिए, एक तो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है, एक लाइन के नीचे वाला पोर्शन है। तो हमें वह एरिया चाहिए जिसमें 0 0 पड़ रहा हो। तो 0 0 कहां पड़ रहा है, इस लाइन के नीचे पड़ रहा है। माने पैराबोला के बाहर लाइन के नीचे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 के बीच वाला, x एक्सिस, वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 के बीच वाला। समझ लीजिए, x एक्सिस, वाई एक्सिस
और x इज इक्वल टू 2 के बीच वाला पैराबोला के बाहर लाइन के नीचे वाली एरिया चाहिए, तो आपने देखा कि यह शेड हुआ। अब स्ट्रिप की बात करूं, यदि स्ट्रिप बना रहा हूं मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये स्ट्रिप इस पूरी एरिया को निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 से शुरू होनी है, x इज इक्वल टू 0 से शुरू होनी है, x इज इक्वल टू 2 तक जानी है। लेकिन इस स्ट्रिप का बॉटम तो नहीं बदल रहा है, देखिए x एक्सिस पर ही रहेगा, टॉप स्विच ओवर हो जा रहा है। 0 से जब चलेगा तो 1 तक, 0 से 1 तक तो ये कहां रहेगा, पैराबोला पर, लेकिन 1 से 2 तक कहां चला जा रहा है, लाइन पर। दोनों डिफरेंट कलर से शो कर दिया मैंने। x इज इक्वल टू 1 से 2 तक उस स्ट्रिप का टॉप है लाइन पर, 0 से 1 तक टॉप कहां है, पैराबोला पर। तो टोटल एरिया आ गई 0 to 1 में y ऑफ पैराबोला दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस 1 to 2 में x प्लस 1 y ऑफ लाइन। इंटीग्रेशन आसान था, लेकिन ये डिसाइड करना, ये फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। अब तो कुछ करना ही नहीं है, x क्यूब बाई 3 प्लस x लिमिट इज 0 to 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x लिमिट 1 to 2, 1 रखा, 1 बाई 3 प्लस 1, 1 बाई 3 प्लस 1, 0 पर 0 हो गया, प्लस यहां 2 रखा, 4 बाई 2 दैट इज 2 प्लस 2 माइनस 1 रखा, 1 बाई 2 प्लस 1, 4 बाई 3 प्लस 4 माइनस 3 बाई 2, 4 बाई 3 प्लस 4 माइनस 3 बाई 2, एलसीएम इज 6, यहां आया 8 प्लस 24 माइनस 9, 32 माइनस 9 बाई 6 दैट इज 23 बाई 6 स्क्वायर यूनिट, 23 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। द फाइनल आंसर इज 23 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपने इसे भी देखा एक क्वेश्चन भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन आसान था। तो ये डिसाइड करना, स्टूडेंट मैंने देखा कि कई बार इस एरिया को भी निकाल दिए, क्योंकि दे हैव नॉट डिसाइडेड कि हमको पैराबोला के अंदर वाला चाहिए कि पैराबोला के बाहर वाला चाहिए। आप देखिए, हम अलग अलग इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये टिपिकल बात थी। ये था, ये पैराबोला था, ऐसे ही है पैराबोला आप देख रहे हैं, ये ओरिजिन थी, ये तो पक्का है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के बीच वाली चाहिए, ये x इज इक्वल टू 2, इसके बीच में y एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 लाइन के बीच में x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन चाहिए। ओके, अब यहीं पर डिसाइड करना है कि वो एरिया इधर वाली भी चाहिए कि इधर वाली चाहिए। तो देखिए, पैराबोला हमको 2 पार्ट में बांट दे रहा है, पूरे स्पेस को 2 पार्ट में। एक तो इस पैराबोला के अंदर वाला ये वाली एरिया, और बाकी बाहर वाली। तो कौन सी एरिया लेनी है, उसके लिए हम 0 0 से स्टार्ट करते हैं। यदि 0 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इनइक्वालिटीज को, तो इसका मतलब 0 0 वाली एरिया लेनी है। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, माने ट्रू आंसर आया। इसका मतलब ये वाली एरिया नहीं चाहिए, हमको यह वाली एरिया चाहिए, पैराबोला के बाहर वाली एरिया चाहिए। ओके, ऐसे ही लाइन में भी देखिए,
अलग से देखें, ये लाइन ऐसी थी, फिर ये लाइन दो पार्ट में बांट रही है, एक लाइन के ऊपर वाला, एक लाइन के नीचे वाला। हमने 0 0 से ही किया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 विच इज द ट्रू, माने वह एरिया लेनी है जिसमें ये 0 0 आ रहा हो, इसका मतलब लाइन के नीचे वाली एरिया चाहिए थी। तो लाइन के नीचे वाली एरिया, पैराबोला के बाहर वाली एरिया, लाइन के नीचे वाली एरिया, पैराबोला के बाहर वाली एरिया, ये क्यों नहीं आई? क्योंकि लाइन के तो नीचे है, इसको तो सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा ये पॉइंट, इसलिए हमें ये एरिया लेनी है। ये डिसाइड होना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक। Question number 13. Y is equal to under root 5 minus x square. Y is equal to under root 5 minus x square and y is equal to mod of x minus 1. Y is equal to mod of x minus 1. ओके, तो इसकी एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन है? जब हम इसकी स्केचिंग करते हैं तो सीधे लिख देते हैं इट इज ए सर्किल, बिकॉज द स्टूडेंट विल थिंक कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, x square plus y square is equal to 5. So it is a circle with radius root 5 unit. No, this is the circle, half circle, semicircle means upper part of x axis. ये वाला सर्किल है। सेमी सर्किल, x square plus y square equal to 5 is a circle with center at origin, radius is root 5. लेकिन रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट की वैल्यू हरदम पॉजिटिव ही होगी, इसका मतलब इधर तो आएगा ही नहीं y। आधी तुरंत यही गलती हो जाती है, स्केचिंग ही गलत हो गई। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 को दो पार्ट में लिख दीजिए। y इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस x फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू x माइनस 1, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0। मॉड ऑफ एफ एक्स इज ए माइनस एफ एक्स फॉर एफ एक्स इज लेस देन 0। तो देख रहे हैं एफ एक्स है हमारा यह वाला x माइनस 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड एफ एक्स इज एफ एक्स। x लेस देन 1 पर यह निगेटिव आएगा, इसलिए 1 माइनस एक्स। इट इज ए लाइन पास फ्रॉम 1 0 इंक्लाइंड एट एन 45 डिग्री। 1 0 इसके अंदर ही रहेगा कहीं, क्योंकि ये रूट 5 है, इसका मतलब 2 से ज्यादा है। ये पॉइंट रूट 5 कामा 0 है, तो ये आ गया हमारा 1 0 से 45 डिग्री पर एक लाइन बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। मॉड है, इसके लिए क्या होगा, ये फिर नीचे नहीं आएगी लाइन,
ऊपर तो जाएगी, ये रे है, 1 0 से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव साइड में उधर जाएगी, ये लाइन इस तरफ आ जाएगी, ऐसे। ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये भी नीचे की तरफ नहीं आएगी। ओके, अब आप देखिए हमें कौन सी एरिया निकालनी है, दोनों से इनक्लोज, तीनों से इनक्लोज्ड, इस लाइन और सेमी सर्किल से इनक्लोज्ड एरिया, इसका मतलब ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालने पड़ेंगे भाई, ए बी, ये सी तो पक्का है कि 0,√5 है। सॉल्व कर दें 1 और 2 को, y की वैल्यू √x-1 mod x-1 इज इक्वल टू √5 - x², स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो mod fx का स्क्वायर fx आ जाएगा केवल x-1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - x², x² प्लस 1 माइनस 2x, इस तरफ ला दीजिए, 2x² माइनस 2x, 1 - 5 - 4, 2 से डिवाइड हो गया, x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, x प्लस 1, so x is equal to 2 and x is equal to -1, मीन्स ए पॉइंट आया, x की वैल्यू 2, y 1 हो जाएगी, यहां x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, जो एरिया चाहिए वो -1 से शुरू होके 2 तक जानी है। ये देखिए स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप का टॉप सर्किल पर, बॉटम इस लाइन पर, लेकिन जब ये स्ट्रिप -1 से 2 तक जा रही है तो आप देख रहे हैं इस टॉप तो सर्किल पर ही रह रहा है, लेकिन बॉटम बदल जा रहा है। अब की बार उस एरिया का बॉटम बदल जा रहा है। बॉटम y इक्वल टू 1 - x पर था, लेकिन जैसे ही हम यहां आएंगे तो टॉप तो रह गया, लेकिन बॉटम इस लाइन पर चला गया। इसलिए इसकी एरिया देखिए -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, तो टॉप सर्किल पर रहा, बॉटम इस लाइन पर रहा, तो टॉप माइनस बॉटम, टॉप क्या है सर्किल पर, दैट इज √5 - x² -1 - x dx प्लस 1 to 2, 1 to 2, टॉप तो वही रहा, बॉटम बदल गया, कहां आ गया, बॉटम आ गया x-1 पर dx। अब आप देखिए यहां -a to a है, तो ये फंक्शन तो इवन फंक्शन, इसलिए हो गया 2 टाइम 0 to 1, 2 टाइम 0 to 1 √5 - x² dx, -a to a of x dx is a 2 टाइम 0 to a of x dx when function is even। यहां देखिए 1 is also even, -2 टाइम 0 to 1, 0 to 1 1 dx, but x is an odd function, so -a to a of x dx is 0, प्लस
1 to 2 रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 to 2 एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 to 2 डी एक्स। ओके, अब आप ये देखिएगा जरा, इसको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 2 टाइम एक्स बाई 2 रूट ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए रूट 5 माइनस 2 टाइम 1 का इंटीग्रल एक्स 0 to 1 प्लस एक्स बाई 2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 5 लिमिट इज 1 to 2 माइनस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस एक्स 1 to 2। अब आप वैल्यूज रख देंगे केवल 2, लिमिट थी यहां 0 to 1, 1 रखा 1 by 2 रूट 4 दैट इज 2, 1 by 2 रूट 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 5 by 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5। 0 पर ये भी 0 ये भी 0, 0 by 2 दैट इज 0, ये आ गया साइन इनवर्स 0 इसलिए 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस यहां भी 2 रखा 2 by 2 दैट इज 1, 2 by 2 that is 1, 5 minus 1, 5 minus 4 that is 1. Okay, 2 by 2 that is a 1 into 5 minus 4 that is 1 plus 5 by 2 sin inverse 2 by root 5 माइनस 1 रखा तो माइनस 1 by 2 into 2 5 minus 1 माइनस 5 by 2 साइन इनवर्स 1 by रूट 5, ये हो गया। यहां रखा माइनस 2 4 by 2 दैट इज ए 2 माइनस 1 by 2 एंड दैट कम्स टू माइनस 1। टू इंटू 1 प्लस 5 by 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज ए अननोन वैल्यू, तो ऐसे ही रहने देंगे माइनस 2 दिस 1 प्लस 1 इंटू 1 इज ए 1 प्लस 5 by 2 साइन इनवर्स 2 by रूट 5 माइनस 2 2 कैंसिल 1 माइनस 5 by 2 साइन इनवर्स 1 by रूट 5 माइनस 2 माइनस हाफ दैट इज ए 3 by 2 प्लस 1। ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया। नंबर देखिए कहां कहां है, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो नंबर में केवल बचा हमारा ये 1 और माइनस 3 by 2 प्लस 1 माइनस 3 by 2, ओके दैट इज ए माइनस हाफ। साइन इनवर्स 1 by रूट 2 1 by रूट 5 माइनस 5 by 2 नहीं कैंसिल नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 अंदर है, तो 5 by 2 इंटू 5 क्या हो गया 5 साइन इनवर्स 1 by रूट 5 माइनस 5 by 2 साइन इनवर्स 1 by रूट 5 प्लस 5 by 2 साइन इनवर्स 2 by रूट 5 माइनस हाफ। ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, साइन इनवर्स 1 by रूट 2 1 by रूट 5 कॉमन आ गया, तो 5 माइनस 5 by 2 दैट इज 5 by 2, तो 5 by 2 साइन इनवर्स 1 by रूट 5 ठीक प्लस 5 by 2 साइन इनवर्स 2 by रूट 5 माइनस 1 by 2 दिस स्क्वायर यूनिट। यहां पर भी आंसर छोड़ा जा सकता था, या 5 by 2 कॉमन लेके
साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लगा देंगे। 5/2 कॉमन लेके साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लगा देंगे। साइन इनवर्स ए रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, साथ नॉन वैल्यू आ जाए। मैं करके दिखा दूं, शायद इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5/2 कॉमन ले लिया, 5/2 कॉमन ले लिया। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 माइनस हाफ तो रहेगा ही। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए 1/√5 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, ये भी 1/√5 आ जा रहा है, प्लस बी 2/√5 इंटू 1 फिर से 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5, तो 2/√5 माइनस हाफ। ये देखिए साइन इनवर्स 1 बन गया। सबसे बड़ी बात 5/2 साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, दैट इज 5/2 इंटू 5/2 माइनस हाफ। आंसर वाज 5π/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इनिशियली समझ में नहीं आया कि ये जो है वैल्यू फार्मूला लगाने पर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, इसलिए आप इसको कर सकते। तो थैंक यू। एरिया के काफ़ी क्वेश्चन हमने ट्राई किया। नेक्स्ट डे से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।